Hello students, I welcome you all to our NSC Institute. I am Taruna Saini. So let's continue Unit 1, that is National Income and Related Aggregates. And in today's video, we will learn about gross investment and depreciation. So firstly, let's recall what we have done previously. What is macroeconomics? It is the branch of the economics that deals with the economic problem at a macro level, at the level of economy. Then we have studied about some basic concepts like consumption goods. These are the goods which are used by the consumer, and these are also the category of the final goods because they are ultimately consumed. And then capital goods which are used by the producers for the production purpose, like machines, like a plant. Then we have studied about final goods. These are the goods which have crossed the boundary line, and there is no value to be added now, and they are ready for the consumption. And consumption goods and capital goods both come in the category of the final goods. Then intermediate goods which have not crossed the boundary line and some value is to be added. Then we have studied about stock and flow. Stock is a macro variable which we study at a particular point of time, and the flow is a macroeconomic variable which we study for a particular period of time. Then in today's class, now we'll study about gross investment and depreciation. So let's begin about gross investment and depreciation. So as you know that there are four basic activities. First is consumption. Consumption is an economic activity in which the consumer consumes goods for the satisfaction of his want. Then there is another activity that is production. Production is a process by which the producer will convert the raw material into finished goods. Then there is the activity saving. Saving is that part of the income which is not spent or consumed. Then next economic activity is investment, which we are going to study today. So when the amount is saved, it has to be invested by producers so that further income can be generated. So investment means, what is the meaning of investment? Investment means addition to the capital. Addition to the capital formation means कि हमने अपनी जो स्टॉक ऑफ कैपिटल पहले था उसमें कुछ ऐड किया है सो दैट फॉर जनरेटिंग इनकम, ताकि हमारी इनकम क्या हो सके, जनरेट हो सके, फ्यूचर में हमारी इनकम बढ़ सके. सो आपको एक बात पहले से ही पता है कि एक वर्ड होता है कैपिटल और एक वर्ड होता है कैपिटल फॉर्मेशन. तो कैपिटल तो ऑलरेडी आपका क्या हो गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया. लेकिन अगर आप इसमें समथिंग ऐड कर रहे हैं, यानी कि कुछ प्लस कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये फ्लो हो गया, क्योंकि इससे फ्यूचर इनकम आपकी जनरेट होगी. इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट इज़ द एडिशन टू द कैपिटल फॉर्मेशन. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड इज़ नेट इन्वेस्टमेंट. सो what are the two types of the gross investment? Gross investment is of two types: gross fixed capital formation and change in inventory, or you can say inventory investment. So gross investment का मतलब होता है, it is a total addition made. It is the total addition made to the capital formation and it is of two parts. Gross fixed capital formation. Fixed capital means हो गए आपके जैसे कि प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स. और इन्वेस्टमेंट में जो होगा वो होगा गुड्स, यानी कि गुड्स जिस मटेरियल को आपको सेल करना है उसमें चेंज करना. सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज कंप्राइजिंग ऑफ टू थिंग्स: ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जिसमें मशीन्स आ गए, एंड देन आपके रॉ मटेरियल्स आ गए. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक. Meaning and types of investment. Investment means addition made to existing stock. It increases the production capacity. Productive capacity से increase हो जाएगी ताकि फ्यूचर में इनकम जनरेट हो पाए. Investment is equal to change in capital में चेंज होना. That means चेंज कैसे आएगा? When closing स्टॉक ऑफ कैपिटल इज माइनस ओपनिंग कैपिटल. इन्वेस्टमेंट में चेंज आपका कैलकुलेट हो जाएगा बाय चेंज इन
कैपिटल, स्टार्टिंग में क्या कैपिटल था और लास्ट में क्या कैपिटल था, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल के डिफरेंस को इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। द टोटल एडिशन मेड टू कैपिटल गुड्स इज नॉन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और अ पर्टिकुलर पीरियड यानी कि 1 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन स्टॉक और यू कैन से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि जो किस पर होता है, प्लांट पर, मशीनरी पर, फर्नीचर पर, फिक्सचर्स पर। देन आपका ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट थ्री वे से होगा, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट थ्री वे से होगा आपका। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जैसे कि बिजनेस किस पर इन्वेस्ट करेगा, मशीनरी परचेज करेगा, इक्विपमेंट और बिल्डिंग बनाएगा फैक्ट्री की। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो सकता है, आपके फ्लैट्स बनेंगे, चाहे तो प्रोड्यूसर बनाए, चाहे हाउस होल्ड या गवर्नमेंट बनाए। और एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा जैसे कि हॉस्पिटल्स या स्कूल या रोड डैम्स वगैरह ओपन किए जाएँ, यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। एंड देन आपका आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अ चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक में चेंज आएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यहाँ पर भी आपका ग्रॉस फिक्स का क्या फॉर्मूला बनता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यहाँ पर भी क्या फॉर्मूला बनता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपके टू टाइप्स के हैं, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और जब ग्रॉस में से डेप माइनस कर दोगे तो कौन सी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, नेट इन्वेस्टमेंट। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टॉक इज यूज्ड अप, that is called as consumption of fixed capital, डेप। ग्रॉस नेट इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप। 11th क्लास में आपने डेप के बारे में पढ़ा है, इट इज़ द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और ये आपका एक्सपेक्टेड लॉस होता है। एक्सपेक्टेड मीन्स अगर आप किसी भी एसेट को यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू में डिक्रीज़ होगा, जिसे आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी होते हैं, जैसे कि लॉस बाई थेफ्ट, नेचुरल कैलेमिटीज़, अर्थक्वेक, फ्लड। तो ये जो आपका डेप्रिसिएशन आता है, दो तरह के लॉसेस आपको मैंने बताए। लॉसेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक हो गया आपका एक्सपेक्टेड लॉस और एक हो गया आपका अनएक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस में आपका आ गया डेप्रिसिएशन और अनएक्सपेक्टेड में आ गया आपका लॉस बाय फायर, थेफ्ट, नेचुरल कैलेमिटीज़, फ्लड, अर्थक्वेक। अब डेप्रिसिएशन को कैसे रिकवर कर सकते हैं, बाय मेकिंग प्रोविज़न फॉर डेप। अगर आपका डेप्रिसिएशन का आपको पहले ही पता है कि ये लॉस होगा तो आप इसका प्रोविज़न बनाकर आप अपनी एसेट को दोबारा से परचेज़ कर सकते हो। और अगर आपका अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है तो अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए वी हैव इंश्योरेंस करवा के हम अपने अनएक्सपेक्टेड लॉस से बच सकते हैं। सो what we have studied today, we have studied about investment. Investment means addition to the capital formation during a particular year. Investment are of two types. First is gross investment, second is net investment. Gross investment means it is the total addition made to the capital formation and net investment means it is the actual addition to the capital formation. Then हमने पढ़ा gross investment are of two types, gross fixed capital formation and inventory investment. gross fixed capital formation में आपका फॉर्मूला होगा closing माइनस ओपनिंग, जो बिगिनिंग में था और जो क्लोजिंग में था उनका डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। और इसी तरीके से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री एट द एंड माइनस इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग। और हमें इन्वेंट्री में कौन सी इन्वेंट्री लेनी है, फिनिश्ड गुड्स। और फिर आपका नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आया था ग्रॉस माइनस डेप। डेप का मतलब होता है डेप्रिसिएशन और यू कैन से कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन मीन्स द परमानेंट एंड द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू द एनी कॉज। डेप्रिसिएशन किस वजह से हो सकता है, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, ऑब्सोलेंस की वजह से, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, या किसी भी रीज़न की वजह से आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो सकती है। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेक्टेड लॉस है और आप इसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या रिजर्व बनाकर इस लॉस से रिकवर कर सकते हैं और न्यू एसेट परचेज के टाइम पर आपके पास फंड इकट्ठा हो जाएगा। और अनएक्सपेक्टेड लॉस होते हैं जैसे कि लॉस बाय फायर, थेफ्ट, फ्लड, अर्थक्वेक, और इनको आप बाय इंश्योरेंस की हेल्प से रिकवर कर सकते हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ investment, that is gross investment and net investment. Thank you so much for giving your time.